Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 37th lecture of Material Science and Metallurgy. So, in the previous series of the chapter, we try to discuss the various things about the plain carbon steel, right? So, in today's lecture, we try to discuss the few certain things about the different material like today I am taking the lectures in the two parts, right? So in the part 1 we try to discuss about the wrought iron and the steel and its properties, its characteristics, etc., right? And in the second parts we try to discuss the various things about the cast iron. So the different type of the cast irons, their properties, their applications, according to the we are basically these things we are discussed with the point of view too regarding the manufacturing of the iron and steel, right? Iron and carbons. So these are the constitutions which is forms with the effect of the iron carbon diagram. So in the iron carbon diagram we got the two segmented with the percentage of the carbon which is the steels and the cast iron. So we start the discussions on the wrought iron, right? The metals which are classified into the two categories, which is the non-ferrous metals and the ferrous metals. In the non-ferrous metals, they are including certain kind of the examples like the coppers, aluminums, lead, magnesiums, nickel, tin, alloys, etc. Right? While in the ferrous metals, there is a pig iron, cast iron, wrought iron, and alloys, etc. So, when in the non-ferrous categories, as a metallurgical point of view, there is a non-ferrous metal is a metal which is including the alloys that does not contain the any appreciable amount, generally more expensive देन द फेरस मेटल. जो बेसिकली नॉन फेरस मेटल रहती है वो बेसिकली काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है कंपेयर टू दी फेरस मेटल्स, क्योंकि फेरस मेटल्स के अंदर जो ज़्यादा कंपाउंड्स रहते हैं वो आयन और कार्बन्स के रहते हैं, वाइल इन द नॉन फेरस मेटल्स वहाँ पे इसके कंपाउंड्स जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं. Non-ferrous metals are used because of the desirable properties such as a low weight like the aluminum, higher conductivities like the copper, non-magnetic properties or the resistance to the corrosions like the zinc. These are the some of the benefits of the non-ferrous metals. Some non-ferrous metals are also used in the iron and steel industries. For examples, the bauxite is used as a flux for the blast furnace, while the others such uh, wolframites, then the pyrolustes, then the chromites are used for the making of the ferrous alloys. So we start the introductions with the wrought iron. The wrought iron is an iron alloy with a very low carbon contents in contrast to the steel. इसके अंदर लो कार्बन कंटेंट रहता है कॉन्ट्रास्ट टू द स्टील्स एंड हैज़ ए फाइबरस इंक्लूजन्स विच इज़ नोन एज ए स्लैग. इसके अंदर एक फाइबर टाइप एक इंक्लूजन्स रहता है जिसको जो है वो स्लैग जो है वो बोला जा सकता है. दिस इज़ वॉट गिव इट अ ग्रेन रिसेंबलिंग वुड. ये एक तरीके से जैसे लकड़े जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता, उस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो है वो आपको आप जैसे लकड़े के माइक्रो स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो जैसा माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है ऐसा ही माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो रॉट आयन के साथ जो है वो डेवलप्ड होता है, विच इज़ विजिबल व्हेन इट इज़ एच्ड और बैंड टू दिस पॉइंट ऑफ योर फेलियर. द रॉट आयन इज़ अ टफ मैलेबल डक्टाइल एंड ईजिली वेल्डेबल. रॉट आयन जो होता है वो एक तरीके से टफ होता है, मैलेबल होता है, जिसको हम लोग खींच के कुछ ना कुछ उसके तार वगैरह बना सकते हैं, राइट. वो डक्टाइल रहता है और इजीली वेल्डेबल रहता है. अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ को बात करें तो प्रॉपर्टीज़ अगर रॉट आयन की बात करें तो उसके अंदर जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है मेगा पास्कल्स के अंदर वो 34,000 टू 54,000 तक की उसकी जो है वो PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच के अंदर उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है. और मेगा पास्कल की अगर बात करूँ तो 234
से लेके 372 मेगापास्कल तक उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। नाउ दी एन अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर की मैं बात करूँ तो वो भी सिमिलर रेंज में ही रहती है। देन द अल्टीमेट shear strength which is 28,000 to 45,000 in the pounds per square inch, while we are talking about the megapascal which is the 193 to 310 megapascal. Now its yield point which is the 23,000 to 32,000. Now the modulus of elasticity which is in the psi which is the 28 lakhs. Now the melting point which is in the uh, uh, whenever I'm talking about in the degree centigrade which is the 1540 degrees Celsius, there at that point the wrought iron is maybe tried to be melt. Then the specific gravity which is 7.6 to 7.9. So while we are talking about the regarding the properties of the wrought iron, right? The wrought iron has some certain kind of the brighter properties in the perspective of that perspective. So let's start to discuss about the properties of the wrought iron. wrought iron के पास जो है वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो है वो होती है. सो इट इज़ बिकम सॉफ्ट एट वाइट हीट, राइट, एंड इट कैन बी easily forged and welded, right? सो ये एक तरीके से जैसे ही हम लोग इसको हीट करते हैं तो एक तरीके से वो सॉफ्ट हो जाता है, राइट? अब इसी सॉफ्टिंग वाली कंडीशंस की प्रॉपर्टीज़ के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको एट ए टाइम जो है उसको ईजिली उसको फोर्ज कर सकते हैं, राइट? उस कंडीशंस में अगर आपको उसको फोर्ज करके डिफरेंट शेप और साइज़ में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो फिर आप उसको इस डिफरेंट शेप और साइज़ के अंदर जो है वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? नाउ दैट कैन बी ईजिली ऑल्सो टू बी वेल्डेड. इसको आप उस कंडीशंस के अंदर ईजिली उसको वेल्ड भी कर सकते हो. नाउ इट कैन बी यूज टू फॉर्म द टेम्पररी मैग्नेट्स बट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली. आप जो है आप इसको जो है एज ए टेम्पररी मैग्नेट के बेसिस पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, पर जो है ये रॉट आयन वो है जो ऐसा मेटल है जिसको आप परमानेंटली अगर आपको मैग्नेटाइज करना है तो आप उसको परमानेंटली उसके अंदर मैग्नेटाइजेशंस जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए आप उसको परमानेंटली एज ए मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. इट फ्यूज़ विद द डिफ़िकल्टीज़. ये जो है वो दूसरे मेटल के साथ जो है वो एक तरीके से आसानी से जो है वो डिफ्यूज़ एक तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है, राइट? उसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. इट कैन नॉट बी एडोप्टेड फॉर द मेकिंग ऑफ द कास्टिंग. आप इसको कास्टिंग के लिए जो है वो आप यूज़ ज़्यादा तौर पे नहीं कर सकते. देयर इज़ ए हाई इलास्टिसिटीज एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है वो इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो पाई जाती है. इट इज़ मैंडेटरीली इलास्टिक, डक्टाइल्स एंड मैलेबल एंड टफ. ये जो है वो एक तरीके से इसके अंदर ये मैंडेटरी हो जाता है कि ये जो है वो इलास्टिक हो, डक्टाइल हो, मैलेबल हो और टफ हो. नाउ इट इज़ अनअफेक्टेड बाय दी सैलिन वाटर. ये जो है वो वाटर से जो है वो काफ़ी अनअफेक्टेड रहते हैं. इसकी ज़्यादा कुछ इसकी वाटर की इफ़ेक्ट उसके ऊपर रहती नहीं है. इफ़ पुल्ड अपार्ट, इसको ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रैक्चर विच इज शोज अ फाइबरियस ब्रेक, राइट? जैसे फाइबर ब्रेक होता है, अगर आप इसको इस मेटल को आप दोनों एंड से खींचते हो, राइट, तो अगर इसका फ्रैक्चर जो होगा, इसका फेलियर जो होगा वो किस तरीके से हो, जिस तरीके से फाइबर है, जैसे फाइबर ब्रेक होता है इस तरीके से इस मेटल का जो है वो आपको इसका फेलियर जो है वो आपको दिख सकता है. इज सूटेबल फॉर the members in the tensiles or the compressions, whereas the cast iron is suitable for the members in the compressions only. ये जो है वो दोनों applications के लिए suitable है. इसको आप tensile और compressions दोनों के point of view से आप इसको utilize कर सकते हो. Now we talking about the quality point of view. अगर इसकी quality point of view अगर हम लोग बात करें तो it has its एबिलिटी टू रेजिस्ट द कोरोजन. इसके अंदर एक एबिलिटी रहती है कि जो कोरोजन को जो है वो बढ़ने नहीं देता एंड द फैटिक फेलियर, उसको
बढ़ने नहीं देता, राइट। कोरोजन को वो रेजिस्ट करता है, इसके अंदर कोरोजन लगना डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्लैग फाइबर्स इन दी रॉट स्लैग फाइबर्स इन दी रॉट आयन, जो स्लैग फाइबर है रॉट आयन के अंदर, आर प्रेजेंट्स इन सच अ great numbers that this serves in one capacity as an effective mechanical barrier against the corrosions। जो है ये इस प्रॉपर्टी के साथ लेकर जो है ये कोरोजन को रेजिस्ट कर सकता है, इसीलिए जो है ये कैपेसिटी के साथ एक इफ़ेक्टिव मैकेनिकल बैरियर जो है अगेंस्ट द कोरोजन जो है वो डेवलप्ड करता है। Next, which is the ductility. So it has the ability to draw out, right? आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो इसके अंदर। ड्यू टू द डक्टिलिटी इसके अंदर ये एबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि आप उसको खींच के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो उसको बना सकते हो। नेक्स्ट आपका इसके अंदर एक एडवांस प्रॉपर्टी बन जाएगा विच इज़ दी मेलाबिलिटीज़, राइट। तो मेलाबिलिटीज़ से इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो डेवलप्ड होती है। सो ड्यू टू द मेलाबिलिटीज़ इट हैज़ अबिलिटीज़ टू हैमर्स इनटू द शेप्स, राइट। इसको आप टिप टिप के, राइट, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके आप उसको टिप टिप के, अगर आप इसी को किसी शेप में, अगर जैसे मैं बताऊँ कि आपको नट एंड बोल्ट के हेड बनाने हैं, राइट, तो उसको हैमरिंग करके जो है वो एक तरीके से उसके लिए जो है वो जो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ दी मेलाबिलिटी, राइट। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो रॉट आयन के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट विच इज़ द ड्यूरेबिलिटी एंड एलिगेंस, राइट। ये ड्यूरेबल भी है, काफ़ी लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एलिगेंस जो है वो अच्छा है। देयर इज़ अ लो मेंटेनेंस, सो द रॉट आयन इज़ ऑल्सो ईजी टू मेंटेन्स एंड इन द लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम रहता है और इसको आप इस तरीके के एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। नाउ अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो रस्टिंग की, अगर मैं यहाँ पे 3 मेटल का कंपैरिजन आपको साथ में दिखा रहा हूँ, रॉट आयन, कास्ट आयन एंड स्टील। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि रॉट आयन का कंपैरिजन अगर हम लोग बात करें कास्ट आयन और स्टील के अगेंस्ट में, तो रस्टिंग द रस्ट आर मोर देन द कास्ट आयन। कास्ट आयन से रस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो रस्ट इजीली, स्टील भी है वो इजीली रस्ट हो जाता है, जबकि कास्ट आयन जो है वो इजीली रस्ट नहीं होता है। नाउ द मेलेबिलिटीज एंड डक्टिलिटी, ये जो रॉट आयन है वो काफ़ी टफ है, मेलेबल है, डक्टाइल है और मॉडरेट इलास्टिक्स है, राइट। तो इससे आप काफ़ी शेप्स जो है वो डेवलप्ड कर सकते हैं, जबकि स्टील जो है वो काफ़ी टफ, मेलेबल और डक्टाइल है, इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, तो वो जो है वहाँ पे एक दिक्कत क्रिएट कर सकती है आपके लिए। नाउ द रिएक्शंस टू द सडन शॉक कैन नॉट स्टैंड हैवी शॉक। ये जो रॉट आयन है वो हैवी शॉक जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता, जबकि कास्ट आयन भी वैसा ही है कि वो ऐसे शॉक जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जबकि स्टील है वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है तो वो शॉक रेजिस्ट कर सकता है। अब बात करें उसको वेल्ड करने की, तो रॉट आयन ईजिली वेल्ड हो सकता है, कास्ट आयन के अंदर डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो सकती है, और स्टील जो है जिसके अंदर वो जो है वो भी रैपिडली जो है उसको हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। अब बात करें अगर आयन मैन्युफैक्चरिंग की, राइट, तो जैसे रॉट आयन जो है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो रॉट आयन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होने की जो प्रोसेस है वो जैसे आयन ओर में से हमने पिग आयन डेवलप किया, पिग आयन में से हमने कास्ट आयन डेवलप किया, और कास्ट आयन से जो है वो रॉट आयन जो है वो डेवलप्ड होता है, राइट। सो द स्ट्रेंथ deficiencies of the cast irons were eventually partly addressed by the developments of the process which is termed as a puddling. This involved the reheating of the cast irons and manually making or mixing the air in with the molten mass. So ये यहाँ तक जो बात की हमने वो रॉट आयन के मैन्युफैक्चरिंग और उसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव हमने बात की। अब यहाँ पे जो बात करनी है, जो सेकंड अपने पास मेटल है विच इज़ दी स्टील, राइट। तो हम लोग स्टील के बारे में डिस्कशन करने का स्टार्ट करेंगे।
अगर मैं स्टील के डिस्कशंस के बारे में मैं अगर बात करूं तो स्टील इज़ बेसिकली एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील जो है वो बेसिकली आयरन और कार्बन का अलॉय है with a small percentage of other metals just like the nickel, chromium, aluminum, cobalt, molybdenum, tungsten etc. तो स्टील के अंदर जो बेसिकली कंस्टिट्यूंट्स होते हैं वो आयरन एंड कार्बन होते हैं। इसके साथ स्मॉल अमाउंट में ये जो सारी मेटल्स है जैसे निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, राइट, वो जो है वो प्रॉपर्टीज एनहांसमेंट के लिए जो है वो ऐड की जा सकती है। द स्टील इज अ हार्ड, डक्टाइल एंड मेलेबल सॉलिड एंड इज प्रोबेबली द मोस्ट सॉलिड मटेरियल आफ्टर द प्लास्टिक एंड द आयरन। If we draw a comparisons between the iron and steel, we find the steel is many ways even better than the iron. स्टील जो है वो आयरन से, नॉर्मल आयरन से काफ़ी, जैसे हमने बात किया था प्लेन कार्बन स्टील, राइट, तो ऐसी कंपेरिजन्स में स्टील जो है वो काफ़ी बेटर है ड्यू टू द इट्स प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। द स्टील मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज द आयरन। स्टील जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आयरन स्ट्रॉन्ग है, राइट, बट इट फार मोर रेजिस्टेंस एंड डज नॉट कोरोड, राइट। इसके अंदर रेजिस्टेंस जैसे वियर रेजिस्टेंस हो गया, कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया, राइट, इसके अंदर रस्टिंग काफ़ी इजीली जो है वो नहीं होती है कंपेयर टू आयरन। इससे लिए जो है ऐसी प्रॉपर्टीज़ के एडवांसमेंट की वजह से जो है वो स्टील जो है वो काफ़ी एप्लीकेबल्स है। देर आर द मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टील विच इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ मेटल्स, राइट। स्टील जो है इस तरीके से जो है इसका क्लासिफिकेशंस जो है वो होता है and the percentage contents of the metals in the particular type of the steel. So now we start the types of the steel. The below givens are some commonly types of the steels, which is the high carbon steel, mild steel, medium carbon steel and stainless steel. So we start the discussions on the steel which is the high carbon steel. The high carbon steel is simply composed of the iron and carbon with a more percentage of the carbons in it than the iron, and it is probably most commonly kind of the used steels. Now the next, which is the mild steel, it is composed of the iron and carbon but it has a very low content of the carbon. Next, which is the medium carbon steel. The medium carbon steel has a normal content of the carbon, that means medium carbon steel के अंदर एक normal moderate content of carbon रहता है, which means they are not as hard as compared to the high carbon steel, but they have a strong of the mild carbon steel. Now next, which is the stainless steel. A stainless steel is the most resistant and the commonly used steels of the all type. ये जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टील है। It part from a carbon content which is the 11% of the chromium. इसके बाद कार्बन कंटेंट की अगर बात करें तो ज़्यादा परसेंटेज इसके अंदर क्रोमियम के रहते हैं, वेर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द निकल, एंड इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट रेजिस्टेंस स्टील ऑफ ऑल टाइप। ये जो है वो सारे टाइप्स के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट टाइप वाला स्टील है। द स्टेनलेस स्टील इन पर्टिकुलर इज द रेजिस्टेंस टू many shot of extreme attack. Even a scratches cannot stay on the surface of the stainless steel. So then high speed steel, अगर high speed steel की अगर बात करें तो high speed steel is an alloy of the steel which may consist of either of the following metal which is the tungstens, cobalts, molybdenums and the chromium. ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी स्ट्रेंथ और जो है वो रेजिस्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज करते हैं। हाई स्पीड स्टील इज प्रोबेबली द टफेस्ट टाइप ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द स्टील। द टर्म हाई स्पीड स्टील इज गिवन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट हैज़ अ एबिलिटी टू कट द मेटल। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दूसरी मेटल को भी कट कर सकता है। नेक्स्ट, विच इज़ द कोबाल्ट स्टील. The cobalt is much like the high speed steel with the excess of the cobalt in the presence in it.
ये हाई स्पीड स्टील जैसा ही होता है, पर इसके अंदर कोबाल्ट का प्रेजेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है. नाउ नेक्स्ट विच इज़ द क्रोमियम निकल स्टील्स. ए निकल क्रोमियम स्टील हैज़ ए special type of the steel which apart from being strong also shock resistant. ये काफ़ी अच्छा shock resistance माना जाता है. Then the aluminum steel. Aluminum steel is smooth steel with a high carbon content of aluminum. Because of its strong and smooth surface, it is used in the making of the furniture. ये जो है वो फर्नीचर के अंदर यूज़ होता है. Next, which is the chromium steel. The chromium steel have a high content of chromium and are resistant to the corrosions. They are very strong, tensile and elastics in the nature. So this is the manufacturing or how the steel is to be made. राइट. द ब्लास्ट फर्नेस से लेके जो है वो कैसे इसका सिंटरिंग प्रोसेस किया जा सकता है, और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो है वो कैसे इसको प्रोड्यूस करके, इसको रिफाइन करके, इसको लास्ट में रोलिंग मिल तक जो है वो किस शेप या आपके जैसे एक तरीके के कॉइल फॉर्म के अंदर फॉर्म करके किसको इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ये यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है. राइट. इसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं. सो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो इट हैज़ ए स्पीड ऑफ इरेक्शंस. राइट. देन द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शंस. देन द एज ऑफ रिफर, इसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं. दैट इज़ द एडेप्टेशंस ऑफ द प्री फैब्रिकेशंस. आप इसको आसानी से इसको जो है वो प्री फैब्रिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ अ रिपीटेटिव यूज़. आप स्टील को बार बार यूज़ कर सकते हो. इसका स्क्रैप को मेल्ट करके फिर हीट करके और दूसरे शेप में कन्वर्ट करके आप स्टील को यूज़ कर सकते हो. देन द एक्सपांडिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो. देन द थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड द फायर रेजिस्टेंस. ये क्या होता है, राइट. इसकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं. Now the properties which is depends largely on the alloying elements. Properties जो है वो largely किसके ऊपर depends करती है, largely जो है इसके alloying elements के ऊपर depends करती है. The carbon is added to the ions to make it stronger, right? The melting points change depending upon the amount of the carbon which is present by the mass. But once the carbon content in the steel is exceeds, which is 2.1% by the mass, it is no longer steel and it is converted into the कास्ट आयन. इसके अंदर द कार्बन परसेंटेज अगर 2% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये स्टील में से जो है वो कास्ट आयन में कन्वर्ट हो जाता है. द स्टील इज लॉस इट्स स्ट्रेंथ व्हेन इट इज़ हीटेड सफिशेंटली. जैसे आप इसको हीट करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है. देयर इज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर आफ्टर विच इट कैन नॉट बी सेफली सपोर्ट्स दी लोड. Now, what are the limitations of the steel? The steel has a limitations in the form of the corrosions. There are certain kind of the limitations with the corrosion. They are expensive fire roof treatments, then subjects to the buckling and can be more expensive than the other material. ये काफ़ी जो है वो expensive material compared to the other materials. Now, as we talk about the characteristics of the steels, the steel has a high strength, then uniformities, then elasticity, then ductility. It has a quite little bit quite tougher than the other materials. Then it has a kind of the brittle kind of the fractures we can observe during the properties of the steel. So the steel has some kind of the bright properties compared to the other materials like the strength. It has a quite good ductilities and the toughness. So this is the regarding the properties or the characteristics of the steels. Now the use of the steel, as we discuss about the use of the steel, the use we can use the steels in the manner of that there is a kind of the mild steels and kind of the hard steels. So as we talk about the mild steel, so which has the carbon content which is up to 0.1%, 0.10% to the up to the 0.6%, right. सो अगर हम लोग बात करें कि जिसके अंदर 0.10% ऑफ कार्बन है तो वो मोटर बॉडी हो गया, शीट मेटल 3 प्लेट्स के अंदर. फिर 0.25% अगर कार्बन कंटेंट है तो फिर बॉयलर प्लेट.
स्ट्रक्चरल शीट्स। पॉइंट 45 अगर है तो रेल्स, ट्रेल्स। अगर 60% है तो हैमर्स, लार्ज स्टैंपिंग, प्रेसिंग्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे हार्ड स्टील के जैसे इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन वो जैसे इंक्रीज़ हो गए तो 0.75 तक जो है वो स्लेज हैमर, 0.90 तक जो है वो माइनर ड्रिल्स हो गए आपके। 0.1% अगर बात करूँ तो चीजल्स, हैमर्स, शोज़, वुड बर्निंग्स ये होता है। जैसे अप टू 1.1% विच इज़ द एक्सेल्स, ड्रिल्स, नाइव्स, पिक्स, पंचेस, ये इसके अंदर इसका एप्लीकेशंस होता है। सो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द existence type of the heavy and the light engineering industries for shipbuilding, railways, rolling stocks, automobiles, sheet metal industries, power generations and electric industries, etc. So this is the applications of the steel. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 पॉइंट जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है, विच इज़ द रॉट आयन और दी स्टील, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके एप्लीकेशंस जो है वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। सो यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के आपके क्वेश्चंस जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसी लेक्चर का दूसरा पार्ट जो है वो कास्ट टाइम के साथ मैं आपको थोड़ी देर के बाद आपको अपलोड करूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आज के सेशंस के अंदर मैं इसके 2 लेक्चर जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी ये वीकेंड तक जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है वो हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर डिस्कशंस किया है। आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस lecture.